back to my channel. So in this video we are going to talk about nerve supply of lower limb. In previous video we talked about all the muscles related to lower limb, which includes 4 parts: gluteal region, leg muscles, thigh muscle and sole muscle. And in this video we are going to talk about the nerve supply and all the parts. So let's start the topic. First of all, we'll cover the gluteal region, which are the muscles innervated by muscles and nerves. So we are going to talk about these. First of all, first muscle is gluteus maximus. It is innervated by inferior gluteal nerve. As the name suggests, gluteus, so it will be innervated by inferior gluteal nerve. Inferior gluteal nerve. Now second muscle is gluteus medius and third muscle is gluteus minimus. So second, third and tensor fascia lata is innervated by superior gluteal nerve. Second, gluteus medius, gluteus minimus and tensor fascia lata is innervated by, we have, that is superior gluteal nerve. Okay, now we have gemellus superior, gemellus inferior and obturator internus, obturator externus, piriformis and quadratus femoris. So now nerve to obturator internus will supply the muscle gemellus superior and obturator internus. These fourth and sixth muscle, gemellus superior and obturator internus, will be supplied by nerve to obturator internus. Okay, now we have obturator external, which will be supplied by posterior division of obturator nerve. नाम ही ऑब्टुरेटर है तो हम अच्छे से याद कर सकते हैं. ऑब्टुरेटर एक्सटर्नस विल बी सप्लाइड बाय पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ ऑब्टुरेटर नर्व. Okay, now we have piriformis, which will be supplied by ventral rami of S1 and S2. Ventral rami of S1 and S2. Okay, we have covered all the muscles, I think so. Yes, we have covered. We are left with gemellus inferior and quadratus femoris, which will be innervated by nerve to quadratus femoris. Okay, these two muscles will be innervated by nerve to quadratus femoris. Okay, we have revised all the muscles or all the nerves which is supplying to gluteal region, which includes gluteus maximum is supplied by inferior gluteal nerve, gluteus medius, gluteus minimus and tensor fascia lata is supplied by superior gluteal nerve, gemellus superior, obturator internus is supplied by nerve to obturator internus, obturator external is supplied by posterior division of obturator nerve, gemellus inferior, quadratus femoris is supplied by nerve to quadratus femoris. नाम से ही nerve है ये. Piriformis is supplied by ventral rami of S1 and S2. Okay, hope so याद हो गई होगी और नहीं भी हुई तो इसको लिख लेना ताकि बाद में रिवाइज करने में आसानी हो. Now we are going to cover muscles of thigh. Now thigh muscles includes 3 parts: front part, medial part, back part. We have discussed in earlier video. If you have not seen them, please go to my description and go through that video. So thigh muscles includes 3 parts: front part, medial part and back part. So front part includes sartorius muscle, quadriceps femoris and articular genu. Medial part includes adductor longus, brevis, magnus, gracilis, pectineus. And back muscle includes semitendinous, semimembranous, biceps femoris and adductor magnus. Now we are going to go through all the nerve supply which is supplying to front part. Front part is supplied by femoral nerve. This all the 3 muscles is supplied by femoral nerve. Okay, medial part is supplied by obturator nerve. This all the 5 muscles is supplied by obturator nerve. Now back part of thigh is supplied by sciatic nerve. अब इसको sciatic nerve को समझने के लिए थोड़ा मैं डिटेल में समझाती हूँ.
क्या होता है, ये सियाटिक नर्व है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, टिबियल पार्ट एंड कॉमन पेरोनियल पार्ट। मैं चारों मसल्स लिख लेती हूँ। अब जो पहले हमारे पास है सेमी टेंडेनस, सेमी मेम्ब्रेनस, बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर मैग्नस। तो क्या होता है, ये जो टिबियल पार्ट होता है ये सप्लाई करता है, टिबियल पार्ट ऑफ सियाटिक नर्व सप्लाई टू सेमी टेंडेनस एंड सेमी मेम्ब्रेनस। ओके, अब जो बाइसेप्स फेमोरिस है हमारे पास, इसके दो हेड्स होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। और एडक्टर मैग्नस के भी दो पार्ट्स होते हैं, दैट इंक्लूड्स एडक्टर एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट। एडक्टर एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट, ठीक है। अब जो टिबियल पार्ट होता है ये सप्लाई करता है सेमी टेंडेनस, सेमी मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। तो चारों को सप्लाई करता है सेमी टेंडेनस, सेमी मेम्ब्रेनस, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड हैमस्ट्रिंग पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। अब जो कॉमन पेरोनियल पार्ट है ये सप्लाई किसको करेगा, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस एंड एडक्टर पार्ट ऑफ एडक्टर मैग्नस। तो होल में हम क्या बोल सकते हैं, जो बैक पार्ट होता है हमारे पास ये सप्लाई होता है हमारे पास सियाटिक नर्व, ठीक है। तो हमने थाई मसल्स का देख लिया। अब जो फ्रंट पार्ट है ये फेमोरल नर्व सप्लाई करती है, मीडियल पार्ट ऑब्टूरेटर नर्व एंड बैक पार्ट सियाटिक नर्व। अब हम देखेंगे लेग मसल्स। तो हम देखते हैं लेग मसल्स। बेसिकली लेग मसल्स में कितने पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने थाई में देखा था फ्रंट बैक मीडियल, ऐसे लेग में एंटीरियर लेटरल बैक। जो एंटीरियर पार्ट होता है ये सप्लाई होता है डीप पेरोनियल नर्व से। ये जो 5 मसल्स है हमारे पास ये सप्लाइड होती है डीप पेरोनियल नर्व, ठीक है। लेटरल पार्ट में क्या क्या होता है, पेरोनियस लॉन्गस एंड पेरोनियस ब्रेविस, ये सप्लाई होता है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, ठीक है। और जो बैक पार्ट होता है ये सप्लाई होता है टिबियल नर्व। अब देखो टिबियल नर्व जो होती है ये जब आगे जाती है, लेग मसल से आगे जाती है सोल में, तो यही डिवाइड हो जाती है हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व में और लेटरल प्लांटर नर्व में। तो हम देखेंगे सोल मसल्स किस किस से सप्लाई होती है। बेसिकली सोल मसल्स में 4 लेयर होती है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर एंड फोर्थ लेयर। और देखो जो फर्स्ट, सेकेंड और जो ये लुम्ब्राइकल्स होते हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, ये जो लम्ब्राइकल्स है 1, 2, 3, 4, ये सप्लाई होती है फर्स्ट, सेकेंड और फर्स्ट लम्ब्राइकल्स, ये सप्लाई होती है हमारे पास मीडियल प्लांटर नर्व। ये जो रेड में मार्क है हमारे पास ये सप्लाई होता है मीडियल प्लांटर नर्व। ठीक है। अब जो हमारे पास बाकी मसल्स बची, हम अब लेग मसल्स को हटा देंगे। हमने पढ़ा था कि जो लेग मसल्स होती है ये आगे जाके सोल में एक्सटेंड हो जाती है। तो कौन कौन सी होती है, एक तो फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, हमने यहाँ पढ़ी थी फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस, एक पढ़ी थी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, ये भी जो आगे जाके एक्सटेंड हो जाती है। एक बार हमने पढ़ी थी पेरोनियस लॉन्गस एंड टिबियालिस पोस्टीरियर, ठीक है। तो इनकी जो नर्व सप्लाई होती है, जो ऊपर नर्व सप्लाई होती है वही होती है। जैसे कि फ्लेक्सर हेलुसिस लॉन्गस है, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस है, ये सप्लाई होता है टिबियल नर्व से। अब जो पेरोनियस लॉन्गस है और टिबियालिस पोस्टीरियर है, टिबियालिस पोस्टीरियर होती है सप्लाई टिबियालिस नर्व, टिबियल नर्व से, और जो पेरोनियस लॉन्गस होती है ये सप्लाई होती है सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व से, ठीक है। तो अब हमने ये चारों मसल्स हटा दी, लेग की मसल्स। अब जो बाकी की मसल्स होती है ये सप्लाई होती है लेटरल प्लांटर नर्व में। कौन कौन सी बच गई हमारे पास, एक तो ये एडक्टर डिजिटोरम ये, और हमारे पास बच गई FTA जो कि है फ्लेक्सर डिजिटोरम SSC, ये बच गई हमारे पास 3 लम्ब्राइकल्स, ये थर्ड लेयर की मसल्स बच गई, और ये पहली 2 लेयर बच गई। तो ये किस किस से सप्लाई होती है, लेटरल प्लांटर नर्व से। ये जो पिंक में हमारे पास ये लेटरल प्लांटर नर्व, ठीक है। तो हमने ये पढ़ ली सारी मसल्स प्लस नर्व सप्लाई। थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। लेग मसल्स हमने देखी, एंटीरियर पार्ट डीप पेरोनियल नर्व, लेटरल पार्ट हमने देखा सुपरफिशियल पेरोनियल नर्व, एंड बैक पार्ट देखा हमने टिबियल नर्व। जो टिबियल नर्व होती है जब सोल में जाती है, एक्सटेंड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है मीडियल और लेटरल प्लांटर नर्व में। अब जो सोल मसल्स है एब्डक्टर हेलुसिस ब्रेवियस, फ्लेक्सर डिजिटोरम ब्रेवियस, और ये फर्स्ट लम्ब्राइकल, ये सप्लाई होती है मीडियल प्लांटर नर्व से। जो एक्सटेंड होती है लेग मसल्स सोल में वो एज इट इज सप्लाई होती है, जो ऊपर सप्लाई होती है लेग में, और जो बाकी की मसल्स बच गई वो सप्लाई होती है लेटरल प्लांटर नर्व से। तो अब हमने सारी नर्व सप्लाई पढ़ ली है लोअर लिम्ब की। तो मैं वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ।
अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।